Let us now discuss one illustration. So question देख लेते हैं. A motor car start from rest and accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meters with a constant acceleration. Total distance covered is 640. Find the value of acceleration, retardation, and total time taken. Okay, so let us try to understand what this question actually stands for. एक बोर्ड इधर से स्टार्ट किया. let this point be A से लेके B तक इन्होंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया. B to C कांस्टेंट वेलोसिटी से चला और C to D कांस्टेंट रिटार्डेशन से आकर के रेस्ट में आ गया. C to D. Okay, so we are dividing this entire trip into three parts: A to B, B to C, C to D. A to B, it was having a constant acceleration. Here B to C, it was moving with a constant velocity. B was equal to constant, and C to D, again it was having a constant acceleration. Okay, but here the body is coming to state of rest, that is why इसको मैं उल्टा मार कर रहा हूँ. A equal to constant. Okay, fine. So body is traveling from C to D only, but acceleration was negative, that is why मैंने इसको उल्टा मार कर रखा है. ठीक है, then only the body can finally come to state of rest. It's given that the total distance traveled is 640 meters. This value is also given. Okay, now A to B, it took 10 seconds and the final speed over here was 20 meter per second, and from here to here, like B to C, it traveled with that constant V equal to constant, that equal to 20 meter per second. Okay, so what they are asking for is we need to find out acceleration of the trip A to B. Okay, then we need to get acceleration A while the body was traveling from C to D. All right, and we need to find out the total time taken. Total time taken, if I take it as T, I'm going to take it as small letter t, so this is the total time taken. So we need to calculate these three values. All right, so this is what the question says. Now let us look forward to the solution. As I told, I am going to divide this into three parts: A to B, A to B, okay, B to C, and C to D. So initial velocity for the trip AB was equal to 0. Final velocity of the trip AB is given as 20 meter per second, and time taken for the trip AB, it is given as 10 seconds. So here we know that general expression says V equals U plus AT. Alright, so substituting that condition over here, VAB equals UAB plus acceleration of AB into TAB. Final velocity was 20, initial velocity was 0. We don't know about acceleration from A to B, but time taken we know it is 10. So it's very clear, acceleration for the trip A to B, it is
2 meter per second square. So this is the first thing we were asked to do, acceleration. Okay, now let us see what should have been the distance traveled. Distance traveled from A to B, SAB, equals UAB into TAB plus half of AAB into TAB square. S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. मैंने यही किया हुआ. ओके, सो आपको पता है इधर क्या होगा, UAB का वैल्यू तो 0 था, UAB का वैल्यू 0 था, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएंगे. हाफ ऑफ AAB का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुका है, दैट इज 2 into time taken was how much, time taken was 10 seconds, so 10 TAB स्क्वायर का जगह 10 स्क्वायर आ जाएंगे, that is 100. so SAB का वैल्यू मुझे कितना मिला, SAB I got it as how much, 100 meters. Alright, so total distance जो है it was given as 640 if I am not wrong. Yeah, it was given as 640. okay, that is SAB plus SBC plus SCD इक्वल टू 640. इसमें से SAB का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुका है 100, SBC का वैल्यू मुझे नहीं पता कितना है, SCD was already given as 40, that equal to 640 हो जाएंगे. सो इसमें से आप देखिए SBC का वैल्यू कितना होगा, SBC का वैल्यू होंगे 500. SBC का वैल्यू मुझे क्या मिला, 500 मिला. Now we are going to do the calculation associated to BC. SBC equal to VBC into TBC होना चाहिए. SBC का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, that is 500 equal to वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के जा रहा था B to C, उसका वैल्यू कितना था 20 है ना, that was 20 कांस्टेंट वेलोसिटी into TBC. इसमें से TBC का आपको वैल्यू मिल जाएंगे, TBC equal to 25 सेकेंड. सो TAB का वैल्यू मिल गया, TBC का भी वैल्यू मिल गया. okay, now coming to the third part, that is we are going to travel now from C to D. SCD का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना 40 meters, 40 meters given है. all right, now UCD का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20, बिकॉज B to C जो ट्रैवल करके पहुंचा है, C में पहुंचते पहुंचते उस बॉडी का वेलोसिटी 20 है. दैट मींस C से बॉडी आपका जो ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा था उस टाइम वेलोसिटी 20 है, और D में पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20. ओके, फाइनल वेलोसिटी दैट इज VCD इक्वल टू 0. ऑलराइट, डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास ऑलरेडी है, ये हो जाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, दैट इज VCD स्क्वायर इक्वल्स UCD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ CD इंटू SCD हो जाएंगे. ओके, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू हो जाएंगे 400. ओके, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता कितना है, बट हियर इट इज 40, SCD is 40. okay, so I'm taking this towards the left, so ACD equals minus of 400 upon 2 into 40.
ऑल राइट, 2 into 40 हो जाएंगे. फाइन. सो दिस विल गिव द आंसर एज माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ए सी डी का वैल्यू मिल गया कितना, माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब हमें इसका टोटल टाइम और कैलकुलेट करना है. सो ये टाइम टेकन कितना होगा ये हमें नहीं पता. सो टाइम टेकन के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए, again we are going to consider the trip from C to D only. Okay, this is C to D only. VCD equal to UCD plus ACD into TCD, because हमें TAB मिल चुका है, TBC मिल चुका है ना. अब TCD और चाहिए तो टोटल टाइम आ जाएगा. एक्सेलरेशन हमने दोनों कैलकुलेट कर चुका है. एक्सेलरेशन तो पहले हमें मिल गया था कितना, ये देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इधर दूसरा एक्सेलरेशन मुझे मिल गया. ओके, टाइम टेकन पहला वाला टाइम तो गिवन था 10, दूसरा वाला हमें 25 इधर मिल चुका है. अब हम तीसरा वाला कैलकुलेट करने वाला है. ओके, सो VCD का वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन कर चुका, दैट इज 0. UCD का वैल्यू 20 था, प्लस एक्सेलरेशन इसका वैल्यू -5 है ना, और ये हो जाएगा आपका TCD. तो इसमें से आपको पता है TCD का वैल्यू कितना आएंगे, TCD का वैल्यू आएगा 4 सेकेंड. ऑल राइट. सो नाउ द थिंग इज टोटल टाइम टेकन. सो ये तीसरा TCD का भी आ चुका है 4 सेकेंड. फाइन. नाउ द टोटल टाइम टेकन हैज टू बी, total time taken T, that has to be equal to first A to B 10, okay, B to C कितना 25 and C to D कितना 4. okay, so here it is going to be the answer as 39 second. all right, so here this is the total time taken, that is 39 second. Acceleration we got it as how much, 2, and acceleration का वैल्यू कितना आया था हमारा 2 meter per second square and minus 5 meter per second square. okay, so that was the answer for that. so हमारा next illustration देखते हैं. so here मेरे पास एक ट्रैक है, ट्रैक का टोटल लेंथ 1500 meters है. okay, it is 1500 meters. so let this be the total track. okay, so let this be the midpoint of the track, and here this is the ending point. so starting point मैंने A मार्क किया, ending point मैंने B मार्क किया, और ये मिड पॉइंट जो है उसको मैंने C मार्क किया. okay, now total distance I told you ये कितना है 1500 meters. okay, it is 1500 meters. now इस एथलीट ने क्या किया, first 900 meters. so first 900 meters I am going to mark this as 900 meters. first 900 meters. okay, so this is 900 meters. ये first 900 meters जो है, the athlete is running at a constant acceleration. okay, and what is that constant acceleration, what is the value for that? A is given as 2 meter per second square. so ये after 900 meters जो point है, I would like to mark that as D. of course remaining distance कितना हो जाएंगे, remaining distance is going to be 600 meters. okay, now so these are the given values. now what we need to calculate is, we need to calculate the time taken by the athlete to cover the two part, that is A to D and D to B. I repeat, A to D and D to B, we need to calculate the time. second thing is that the midpoint, that is C, okay, उधर तक पहुंचने में athlete को कितना टाइम लगा. okay, this is the two things we need to calculate. all right, so first of all let us calculate the time taken to travel from A to D. so I'm going to consider the trip from A to D. okay,
So general expression I'm going to use it as s equal to ut plus half at square. So this is the general expression I'm going to use. So question part is clear, I believe, isn't it? Okay. Now इसको जब हम अपना टर्म में लिखोगे एस ए डी इक्वल्स यू ए डी इंटू टी ए डी प्लस हाफ ऑफ ए डी इंटू टी ए डी स्क्वायर. एथलेट ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से. ओके, सो दैट इज व्हाई SAD का वैल्यू हमारा कितना है? SAD का वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन एज 900 मीटर्स, है ना. A to D इट इज गिवन एज 900 मीटर्स. सो इधर हमने वैल्यू पुट किया 900 इक्वल टू ये u 0 होने की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएंगे. ओके, half of acceleration is also given as 2 meter per second. All right, so here this is TAD square. So इसमें से हमें मिल जाएगा TAD का वैल्यू कितना होगा? TAD is going to be 30 second. 30 second. Okay, now we need to calculate the time taken to travel from D to B. D to B travel करने का टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन वी मस्ट नो D में पहुंचते हमारा बॉडी का स्पीड कितना था. ठीक है, वो कैलकुलेट करने में हमारे ये जो TAD वैल्यू हमें हेल्प करेंगे. ओके, सो VAD like D to B ट्रैवल करते हैं उसी स्पीड से जो AD ट्रिप का फाइनल वेलोसिटी है, बिकॉज A to D एक्सेलेरेट करके आया. सो D में पहुंचते वक्त जो स्पीड थे उसी कांस्टेंट स्पीड से B तक पहुंचा, राइट. सो D to C ट्रैवल करने का जो स्पीड है, दैट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रिप AD. सो फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रिप AD कैलकुलेट करते हैं पहले. VAD equals U, it is VAD equal to UAD into AAD into T, that is V equal to U plus AD. ये एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू VAD equal to UAD का वैल्यू हमें पता था, that was 0 plus AAD का वैल्यू it was 2, टाइम टेकन was 3. ओके, सो हमें इधर मिल गया कितना? 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे क्या? TDB, है ना. TDB बोले तो इधर से इधर तक का टाइम, D से लेकर के B तक का टाइम हम कैलकुलेट करने वाले. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, सो वी कैन राइट एज SDB equals VDB into TDB. S equal to distance equal to velocity into time taken. डिस्टेंस ट्रैवल कितना है लास्ट? 600 मीटर्स. इसका वैल्यू कितना है? 60, है ना, इनटू TDB. ओके, सो हमें TDB का वैल्यू क्या आ जाएगा? TDB equals, वेरी क्लियर, विल गेट द आंसर एज 10 सेकेंड. सो एक पार्ट तो हो गया, है ना. A to D कितना डिस्टेंस? टाइम टेकन 30 सेकेंड, एंड D to B टाइम टेकन इज 10 सेकेंड. ओके, सो दो पार्ट हो चुका है. ठीक है, पार्ट 1 इज दिस टाइम टेकन. ये देखो, ये फर्स्ट A to D का और ये D to B का, ये दोनों हो चुका है. अब हमारा पार्ट ये है मिड पॉइंट तक पहुंचने. मिड पॉइंट पहुंचते पहुंचते क्या था? दैट इज A to C. A to C डिस्टेंस कितना? 750 मीटर्स.
ओके, सो मैं एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। सी इधर से लेके इधर तक पहुंचते वक्त टाइम कितना था, यानी कि सी में पहुंचते पहुंचते टाइम कितना था, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 750 मीटर्स। ओके, सो हम इक्वेशन लिख रहे हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जनरल एक्सप्रेशन। अब ac के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, SAC, ठीक है, इक्वल टू UAC का वैल्यू 0 हो जाएंगे, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन तो 2 है, सो TAC स्क्वायर, TAC स्क्वायर आ जाएंगे। ओके, सो इसका वैल्यू क्या था, 750 से कैंसिल हो जाएगा, सो टाइम टेकन TAC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 750 होंगे। ओके, एंड अंडर रूट ऑफ 750 is equal to 27.386. We'll get it as TAC, what happened, equals 27.386 seconds. All right, so that was the third part. Okay, so let's have a cross verification. क्या क्या पूछा था हमसे, calculate the time taken for the athlete to cover the first two part of the distance covered, वो हो चुका। Okay, and also find the time when he is at the center of the track. All right, so first part का, like first part का जो आंसर आया था 30, isn't it? second का आ गया था 10, और बीच में पहुंचते आंसर आया था 27.386. So let's see our next illustration. So the question says, एक train है, assume this as a train. Okay, so the train already started its trip and it is having an acceleration of a equals 2 meter per second square. ये आगे जा रहा है। Okay, and let this be the door. Okay, now somebody is at a distance of 9 meters away from the train. Okay, somebody is approaching the train and he or she is at a distance of 9 meter away from the train. Okay, so train's acceleration is given as 2 meter per second square. Now the question is, कितने टाइम बाद ये बंदा या बंदी ये ट्रेन को बोर्ड कर पाएंगे। ओके, और उसके लिए व्हाट शुड बी द स्पीड that has to be maintained by this passenger so that he or she can board the train. That's a question. So एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो अटैचमेंट मैं यूज कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन पे मत जाना, बिकॉज इसके सॉल्यूशन जो है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में है। ओके, सो अगर कोई भी ये टेक्स्ट बुक या ये मटेरियल अपने पास अगर दिख भी जाता है, ओके, प्लीज डोंट डिपेंड ऑन दैट फॉर द टाइम बीइंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसकी मेथड गलत है, इसकी मेथड बिल्कुल सही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे, और हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी कांसेप्ट अभी हम फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया। दैट इज द ओनली रीजन आई एम सेइंग कि डोंट बी डिपेंड ऑन दैट। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस द कोर थिंग। ओके, जो हमें पता होना चाहिए। देखिए, let this be the train, okay, and let this arrow stands for the door of the train, okay, and let this be the passenger. okay, आप इमेजिन करिए ये ट्रेन का डोर मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ है, और ये बंदा 15 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो क्या होगा, ये डोर आगे चले जाएंगे, ये बंदा पीछे रह जाएगा, है ना, पैसेंजर पीछे रह जाएंगे, ट्रेन आगे चले जाएंगे, से कभी भी इसको बोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर पैसेंजर जो ट्रेन को बोर्ड करना है, दैट इज
कंडीशन ऑफ बोर्डिंग द ट्रेन, मतलब मैकेनिक्स का टर्म में, ओके, अदरवाइज ticket होना चाहिए, that is the condition of boarding the train. Okay, so I'm just telling you about the condition in mechanics. So condition of boarding the train means velocity of passenger v suffix p, that must be equal to velocity of the train. This is the most important thing. अगर ऐसा नहीं है, if velocity of passenger is less than velocity of the train, ये बंदा कभी भी ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाएगा. So this is the minimum criteria. This is the minimum condition or minimum criteria, you can say. Minimum criteria ये होना चाहिए. Okay, so this is the first thing that you must know. So in order to board the train, the velocity of the passenger must be equal to velocity of the train. Otherwise, इससे ज़्यादा है तो it's well and good, no problem at all. But the thing is that at least velocity of the passenger must be equal to velocity of the train. And if the velocity of the passenger is less than velocity of the train, as I already discussed, train का जो door है that will be moving away from the passenger, वो कभी भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे. Okay, now let us now go to the solution part. Okay, so this was the train initial position of the train. Okay, and this stands for the door. All right, and passenger was at a distance of how much? 9 meters. 9 meters का distance पे थे. ठीक है. Now पॉजिटिवली हम अज्यूम कर लेते हैं कि पैसेंजर ने फाइनली ट्रेन को बोर्ड कर पाया, तो ऑब्वियसली ट्रेन आगे जाएंगे. सो जब बोर्ड करते हुए ट्रेन कहाँ पहुंच गए थे? इधर पहुंच गए थे. ओके, और पैसेंजर अपने जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया था? इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, राइट. सो देखिए, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस तो हमें पता था कितना? 9. और हम अज्यूम कर लेते ट्रेन इतना डिस्टेंस और ट्रैवल किया. लेट दिस बी एस. yes, डिस्टेंस और ट्रैवल किया. so now tell me one thing, total distance traveled by the passenger is this much, and वो कितना होगा? 9 plus s होंगे. 9 plus s is the distance traveled by the passenger and s is the distance traveled by the train. I repeat, 9 plus s is the distance traveled by the passenger and s is the distance traveled by the train. okay, और अब ये t टाइम है. This is the time t, जब ट्रेन बोर्ड किया था टाइम t. सो t टाइम में ट्रेन का वेलोसिटी और पैसेंजर का वेलोसिटी सेम होना चाहिए. ओके, फाइन. सो मैंने इधर क्या क्या डेटा बोला आपको? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पैसेंजर. सो हम पैसेंजर की अगर हम बात करें, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएंगे 9 plus s. स्पीड कितना? v मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना? स्मॉल लेटर t. ओके, नाउ कम टू द केस ऑफ ट्रेन. ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल कितना? s. ओके, स्पीड कितना? t टाइम बाद v होना चाहिए. टाइम टेकन कितना होना चाहिए? स्मॉल लेटर t होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस come to the calculation part. देखिए, distance traveled by the passenger, that is 9 plus s equals v into t. okay, now final velocity of the train v, that equal to, train start किया था 0 velocity से, plus acceleration कितना? 2 into time taken is t. all right, next thing, distance traveled by the train s equal to ut plus half v t square. u का वैल्यू 0 था, half of acceleration was t 2 into t square. इधर ये दोनों कट जाएंगे, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? s equals to t square. s equal to t square. okay, now अब क्या करेंगे? let this be equation number 1, let this be equation number 2, and let this be equation number 3. अब आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालना है. कैसे? 9 प्लस s का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आप उठाएंगे, t स्क्वायर इक्वल्स v का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से उठाएंगे,
2 into t multiplied by t. 9 plus t square equals 2t square. इसमें से आपको पता है 9 इक्वल्स टी स्क्वायर हो जाएंगे, टी का वैल्यू कितना होगा 3, टी का वैल्यू 3 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग स्पीड है ना, स्पीड नेक्स्ट स्पीड कैलकुलेट करना था, उसके लिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में से हमें t का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है 3, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। सो जो बंदा जो दौड़ना चाहिए वो कितना स्पीड से दौड़ना चाहिए 6 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये v कहां से कैलकुलेट किया, मैं ऑलरेडी टोल्ड यू बोर्ड करते वक्त तो पैसेंजर का स्पीड और ट्रेन का स्पीड सेम होना चाहिए, है ना। सो ट्रेन जो बोर्ड करने के लिए पैसेंजर का जो मिनिमम स्पीड जो मेंटेन करना है दैट मस्ट बी मेंटेन फॉर 6 मीटर पर सेकेंड। सो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर आप पैसेंजर 3 सेकेंड बाद आपका ट्रेन बोर्ड कर पाएंगे। ओके, सो यू कैन सी द आंसर हियर 6 meter per second, all right, and 3 meters 3 second is the time taken. So total distance travel अगर कैलकुलेट करना हो, so ये मैंने अभी आपका जो क्वेश्चन है इसमें इतना ही पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो स्पीड इज 6 and the time taken is 3 seconds. Let us discuss our next illustration. So the question says, देखिए, I've got a car that is traveling from A to B with a constant acceleration alpha meter per second square, and this is a positive acceleration, and B to C it is traveling, it's not equal distance, it's nothing mentioned like that, minus of beta meter per second square, and coming to state of rest. So it's starting from rest only 0 meter per second, and here the final velocity v is also 0 meter per second. Okay, so that is the trick. So from here to here, so let me call this as A, this is B, and finally here this is C. Okay, so of course इधर से इधर तक A से लेके B तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, सो इधर पहुंचते इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, दैट इज V max। तो फिर इधर से डिक्रीज होते होते 0 पे आएंगे। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। सेकंड थिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि S1 प्लस S2, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, सो हाँ, दैट इज द थिंग। सो हम देखते हैं but how we are going to approach this. Okay, so देखिए, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, I will be solving this into two part. First of all, A to B, A to B. I am going to use the expression as, देखिए A to B का जो टाइम है, let it be t1, okay, and here मुझे पता है V max, final velocity V max है, so what I will be using is, I will be using the expression as V equal to U plus AT, V equals U plus AT. Final expression is V max, initial velocity was 0, acceleration is alpha into time taken is t1। इसमें से मुझे t1 का वैल्यू मिलेगा t1 as v max अपॉन अल्फा। हमारे गिवन वैल्यूज क्या है, अल्फा इज गिवन, बीटा इज गिवन, एंड टोटल टाइम टेकन इज गिवन as स्मॉल लेटर t। तो हमें v max का वैल्यू और टोटल डिस्टेंस का वैल्यू अल्फा, बीटा और टोटल टाइम t के टर्म्स में लेना है। ओके, सो t1 का वैल्यू मुझे मिल गया v max अपॉन अल्फा। नाउ अब देखिए B to C, again V equals to U plus AT, same expression, final velocity is 0,
इनिशियल वेलोसिटी वाज v max और एक्सेलरेशन क्या था माइनस ऑफ बीटा इनटू टाइम टेकन, लेट इट बी t2। इसमें से मुझे मिलेगा t2 equals v max upon beta. Okay, now what I will do is total time taken, we know that t equals, it must be equal to t1 plus t2. okay, t1 का वैल्यू मेरे पास है v max upon alpha, t2 का वैल्यू मेरे पास v max upon beta. So v max is common, 1 upon alpha plus 1 upon beta. Okay, so this is going to be v max, okay, v max into alpha plus beta upon alpha into beta. Okay, so t equals v max times alpha plus beta upon alpha beta. Okay, so from here you will get the value of time taken t as, sorry, v max as, I'm sorry. So the final expression for velocity v max equals t times alpha beta upon alpha plus beta. Okay, so that is the expression for v max. Now what we need to calculate is the total distance travel. So v max का वैल्यू हमें मिल गया. Okay, total distance travel. Total distance travel के लिए सबसे पहले again a to b. So this is part 2. Part 1 तो हो चुका है, ठीक है. टोटल डिस्टेंस हमने v max कैलकुलेट कर. पार्ट 2 a to b ट्रैवल कर रहा है. हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, सो फर्स्ट केस में v max है फाइनल स्पीड, ये 0 से स्टार्ट किया था, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू s1. so इसमें से s1 का वैल्यू आएगा s1 इक्वल्स v max स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा. सेकेंड केस में b to c, अगेन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. इधर फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड v max स्क्वायर था प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस बीटा था, डिस्टेंस टेकन डिस्टेंस ट्रैवल s2 ले लिया. इसमें से मुझे s2 का वैल्यू मिलेगा एज v max स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बीटा अपॉन 2 टाइम्स बीटा. So total distance travel has to be equal to s1 plus s2, इसमें कोई डाउट नहीं है. s1 का वैल्यू v max स्क्वायर बाई 2 अल्फा, इसका वैल्यू v max स्क्वायर बाई 2 बीटा. सो इट इज v max स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन है. ओके, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएंगे, ठीक है. नाउ इसको आप जब कैलकुलेट करोगे you will get it as v max square by 2 into alpha plus beta alpha into beta. Total distance traveled s equals, that is v max square बाई 2, सॉरी v max का वैल्यू अब हम पुट करना है हमें, है ना, बाकी सारे हो चुके हैं. v max का वैल्यू हमारे क्या था, v max का वैल्यू था अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. v max का वैल्यू अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया v max स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा. ओके, सो इधर क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर में एक टी स्क्वायर रह जाएगा, एक अल्फा बीटा उधर रह जाएंगे, है ना.
alpha beta upon 2 times alpha plus बीटा। आई बिलीव आपको समझ में आ गए होंगे। इधर एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, उससे कट जाएंगे, नीचे अल्फा प्लस बीटा बच जाएंगे। इधर अल्फा बीटा से ए कट गया, टी स्क्वायर रह गया, टी स्क्वायर ऊपर तो था ही, अल्फा बीटा ऊपर का रह जाएंगे, इसके आपस में कैंसलेशन हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में रह जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एस इक्वल्स टी स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका Vmax का वैल्यू, दिस Vmax, ओके, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके, अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ओके, टी स्क्वायर टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। I hope you got it.